Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is mixed bag session of obstetrics and gynecology and radiology. As usual, our every session is targeting every upcoming exam, whether it is INI set for November 2022 or FMG for December 2022, and you can say NEET PG for year 2023. So my dear friends, I hope that you all are doing very well. यही उम्मीद है मेरी आपसे कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं. पढ़ने का मतलब एक कंसिस्टेंट पैटर्न में पढ़ रहे हैं. कंसिस्टेंसी इट इज अ प्रॉपर रूल फॉर गेटिंग सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ एम. हमारा जो भी टारगेट है उसके अंदर अगर हमें सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस पाने के लिए हमारा एक पहला रूल जो है वो कंसिस्टेंसी है. अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जो आपका एम है उसमें सक्सेस पाना क्या है, इजी हो जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस मोर एंड मोर. ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाइए, कंसेप्ट क्लियर करते चले जाइए, और जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो कवर करते चले जाइए. So let's start our today's session, my dear friends. Here we go. So our question is, for pap smear staining, which of the following methods is used to fix the smear before staining? So कौन सा मेथड है जो हम यूज करेंगे स्मीयर को फिक्स करने के लिए स्टेनिंग से पहले? So my dear friends, the correct answer will be option number D, that is 95% ethyl alcohol, or you can say 95% ethanol. It will be used. Okay, IR spatula is used to scrape the ectocervix. After application of 95% ethanol, it should be immediately put inside Copeland jar without drying. So air drying हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 95% इथाइल अल्कोहल, और यू कैन से इथेनॉल. ओके, और जैसे ही हम ये अप्लाई कर देंगे उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है? स्पैटुला को कहाँ रख देना? कोबलिन जार में बिना ड्राई किए. ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. हियर our question is, green frothy vaginal discharge is produced by herpes simplex, candida albicans, trichomonas vaginalis, normal vaginal. So my dear friends, correct answer for this question will be option number C, that is Trichomonas vaginalis. Okay, Trichomonas vaginalis से दो चीजें बड़ी associated है. वो क्या है? एक तो है ग्रीन फ्रोदी वेजिनल डिस्चार्ज. ओके, ग्रीन फ्रोदी वेजिनल डिस्चार्ज का प्रोडक्शन कौन करता है जी? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस. और स्ट्रॉबेरी वेजिना इज सीन इन कंडीशन ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है. A one liner question, a short question, a easy question. Okay, so let's go to question number 3. A woman present with secondary amenorrhea after history of pituitary ablation for a craniopharyngioma, which of the following regime is most likely to result in ovulatory cycle? कौन सा नीचे दी गया रेजाइम मोस्ट लाइकली रिजल्ट करेगा किसमें? ओव्यूलेटरी साइकिल में. So my dear friends, correct answer for this question will be option number D, that will be human menopausal or recombinant gonadotropin followed by HCG. So correct answer क्या है जिस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी है. इन दिस केस पेशेंट पिट्यूटरी इज एब्लेटेड. ओके, ये हमें दिख रहा है जी, पिट्यूटरी क्या है? अबलेटेड है. सो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन. अब पिट्यूटरी अबलेटेड है तो किसका प्रोडक्शन नहीं होगा जी? गोनेडोट्रोपिन का. एंड देयर विल बी नीड ऑफ एक्सोजीनस गोनेडोट्रोपिन. सो ये एक्सोजीनस गोनेडोट्रोपिन हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है जी? ऑप्शन नंबर डी में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी माय डियर फ्रेंड्स. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient with peritoneal endometriotic implant is given medroxyprogesterone acetate for management. Mechanism of action for the medical management of endometriosis is. So, the correct answer for this question will be option number A, that is desudilization and endometrial atrophy.
So progesterone act by exerting an anti-estrogenic effect, and their continuous administration causes desudilization and endometrial atrophy. So जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका मोस्ट कॉमन कोज है, अगर उसकी कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है तो वह किस चीज को कोज कर देगा, वो कोज कर देगा जी डेसिडुलाइजेशन और एंडोमेट्रियल एट्रोफी को। और यहाँ पर हम यूज भी क्या कर रहे हैं, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट मैनेजमेंट के लिए, और इसका कोज क्या हो सकता है जी, ऑप्शन नंबर ए। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। A 34-week pregnant woman admitted in ICU with hypertension in pregnancy. She is receiving magnesium sulfate by IM resin. MgSO4 has no role in prevention of. So you have to choose one correct choice from these given option. And my dear friends, the correct choice is option number C. Respiratory distress syndrome in premature baby cannot be prevented by MgSO4. MgSO4 का कोई रोल नहीं है किसकी प्रिवेंशन में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किसमें, प्रीमेच्योर बेबी में। सो प्रीमेच्योर बेबी में इस सिंड्रोम को प्रिवेंट नहीं कर सकता है MgSO4. MgSO4, it is a drug of choice which prevents seizures in severe pre-eclampsia and also for seizure control in eclampsia. Okay, this is also used for control of recurrent seizures. सो ऑप्शन नंबर ए को कंट्रोल कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी को भी प्रिवेंट कर देगा, ऑप्शन नंबर डी को भी प्रिवेंट कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को ये नहीं कर पाएगा, क्या, प्रिवेंट। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज बर्ड बीक साइन मीन? बर्ड बीक साइन का मतलब क्या है, देख लीजिए। बर्ड बीक साइन दिखता किसमें है, बर्ड बीक साइन इट इज सीन इन कंडीशन सिग्मोइड वल्वुलस। सिग्मोइड वल्वुलस में दिखेगा जी, ठीक है, किसमें दिख रहा है, सिग्मोइड वल्वुलस में। और बर्ड बीक साइन किसमें दिख सकता है, एक्लेसिया कंडीशन में। सो बर्ड बीक साइन क्या है, इट रिप्रेजेंट ग्रेजुअल नैरोविंग or tapering of sigmoid colon up to the level of obstruction during contrast or barium insertion to the rectum or on CT. When located in sigmoid colon, it suggests diagnosis of sigmoid volvulus. It is also used to refer to the tapering of inferior esophagus in eclasia. Same appearance also referred as a rat tail sign. Okay. सो इसी सेम अपीयरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेड टेल साइन। ये है जी कंडीशन सिग्मोइड वल्वुलस की, और यहाँ पर ये ईसोफेगस की कंडीशन एक्लेजिया बर्ड बीक साइन इन ईसोफेगस। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चूज करेक्ट डायग्नोसिस रिगार्डिंग दिस इमेज। माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इमेज विल बी, क्या होगा जी करेक्ट आंसर इस इमेज के लिए, जी करेक्ट आंसर है इट इज क्लास साइन। ये क्या है, ये एरो मार्क्ड साइन क्या है, इट इज क्लास साइन। ओके, लेट्स रीड लिटिल डिटेल अबाउट क्लास साइन। हियर यू गो। क्लास साइन सीन इन इंटूससेप्शन। क्लास साइन किसमें दिखेगा, इंटूससेप्शन में। ओके, the radiological perspective of most classic sign to differentiate Wilms tumor from neuroblastoma is class sign. Okay, class sign, क्लास साइन के बेसिस पे हम कुछ ट्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मेनिंजियोमा को हमने डिफ्रेंशिएट किया किससे, इंट्रा एक्सियल ब्रेन ट्यूमर से। विल्म्स ट्यूमर को हमने डिफ्रेंशिएट किया किससे, न्यूरोब्लास्टोमा से। रीनल एंजियो मायोलाइपोमा को डिफ्रेंशिएट किया हमने किससे, रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा से। सो क्लास साइन है, ये डिफ्रेंशिएट करता है इन ट्यूमर्स को, ठीक है। और क्लास साइन किस में दिख रहा है जी, इंटूससेप्शन में और इन ट्यूमर्स में, मेनिंजियोमा में, वेल्स ट्यूमर में, रीनल एंजियोमाइलोलाइपोमा में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इट आल्सो मिमिक द शेप ऑफ क्रैब और लॉबस्टर क्ला। ओके, इसको क्लास साइन क्यों बोला है, क्योंकि ये मिमिक्री करता है किसकी, क्रैब और लॉबस्टर क्ला की, जो पंजा है ना उनका, उसकी तरह मिमिक करता है, इसीलिए बोला है इसको क्लास साइन। और you can also say it is a crab or lobster claw.
My dear friends, question number 7 clear हो चुका है. Let's go to question number 8. Here you go. Spot the correct diagnosis regarding this image. So इस इमेज का करेक्ट डायग्नोसिस क्या होगा my dear friends? The correct diagnosis is strawberry skull. Okay, so here you can see it clearly. ये क्या किस तरह दिख रहा है हमें? Strawberry skull. Something like strawberry. Okay, something like strawberry it is looking like. Okay, you can see it is looking like strawberry. So this skull is named as strawberry skull. Okay, strawberry skull, it is a sonographic find of a strawberry shaped skull is a marker of serious fetal malformation. ये किसको डिनोट कर रहा है? सीरियस fetal malformation को, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी 18. सो स्ट्रॉबेरी स्कल हमें कौन सी ट्राइसोमी में दिखेगी? ट्राइसोमी 18 में. और किसको डिनोट कर रही है? fetal malformation को. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो चुका है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. Spot proper diagnosis for given image. So my dear friends, the correct diagnosis for this image will be, it is bat wing appearance. इस इमेज का करेक्ट डायग्नोसिस क्या है? सी bat wing appearance. Okay, you can see it here properly. Something like bat wing appearance, and bat wing appearance it is seen in following condition. Okay, pulmonary edema, pneumonia, aspiration or PCP, inhalation injury, pulmonary alveolar proteinosis, pulmonary hemorrhage and bronchoalveolar carcinoma. सो ये कंडीशंस हैं जिनमें क्या दिखेगी? बैट विंग अपीयरेंस हमको दिखेगी. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है. चलो इससे रिलेटेड एक इमेज और देख लेते हैं अपन. हियर यू गो, बैट विंग अपीयरेंस. सो ये प्रॉपरली है, जो पीछे जो इमेज दी गई है उसी का प्रॉपर इसने यहाँ पर दिखा रखा है कि बैट विंग अपीयरेंस कैसे शो हो रही है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है. बैट विंग अपीयरेंस किस किस में दिख रही है ये भी क्लियर हो चुका है. Let's go to our ending question for the day, or ending image for the day. So here you can see snowstorm sign. Okay, snowstorm sign, it is according to obstetrics image, it is seen in condition complete hydatiform mole. और ये इस साइड जो इमेज दी गई है ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आईना सेट में भी आई थी, एफएमजी में भी आई है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज. वहां पर ऑप्शन में क्या था? हाइडेटिफॉर्म मोल, और वही क्या था? करेक्ट आंसर था. ओके, सो स्नोस्टॉर्म साइन, it is classically, or it is a sign associated with extracapsular breast implant rupture. So here in this x-ray you can see this image is for breast implant rupture, and you can also see during ultrasonography the appearance of complete hydatiform mole. So my dear friends, this is all about our today's session. Thanks to everyone. Stay safe, stay healthy, and if you feel that this video is helpful, to share this video, like this video, and subscribe to my channel for more updates.